Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel. Before we begin today's reading, I want you to just pause for a moment, take a deep breath in, and slowly release it. Because today's reading is not just any reading, this is about your future, your love, your life partner, the person you're going to marry, the person who will walk beside you, support you, love you, and become your home. If you ever wondered, who is my future spouse? Where will I meet them? Will they truly love me? Will I be happy in my marriage? Then trust me, you were guided to this video for a reason. Nothing here is random. Your energy brought you here. In today's reading, we are going to uncover everything, not just who they are, but also their personality, their intentions, their feelings for you, how your love story will begin, where will you meet them, and what your married life will actually look like. We will also be seeing hidden details, things you might not even expect right now, but will make complete sense later. This is a timeless reading, which means whenever you are watching this, message is meant for you. But remember, this is a general reading. Take what resonates with your heart and gently leave the rest. In front of you, there are three piles. Pile 1, pile 2, and pile 3. Now close your eyes for a moment, take a deep breath, and let your intuition guide you. Don't overthink, just notice which pile you feel drawn to first. And remember, this is a general reading, so take what resonates deeply with your heart. Now relax your mind, open your heart, and choose your pile. Okay, so this is pile 1, Ace of Cups. Let's see who is your future spouse, what partner you are attracting in your life, and how will he be, his nature, his personality, his career, everything. Let's see who your future spouse is. Let's take out cards. Three of Pentacles. Nice. Ace of Pentacles. Very good. Empress. Ten of Swords. Okay. One outcome. Seven of Pentacles. Okay, there are a lot of Pentacles card coming in this for this pile. So I feel that your future spouse will be very hardworking. I mean, very career oriented, very financial oriented. ऐसा नहीं बोलूंगी कि इमोशंस नहीं रहेंगे या इमोशनलेस होगा, ऐसा नहीं है. इट्स जस्ट कि वो बहुत ज्यादा अपने करियर पे फोकस्ड होगा. ही विल बी फोकस्ड in providing you, like he wants to treat you as an empress, as a princess, like top, what we say, princess level treatment. Yeah, he will give you princess level treatment. He wants to give you princess level treatment. सो आई फील कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा मेरे को ऐसा लगता है बहुत बर्डन भी अपने काम का ले लेगा, और हो सकता है वो अपने पर्सनल लाइफ को ज्यादा टाइम ना दे पाए इस चक्कर में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अपने करियर पे ओरिएंटेड रहेगा. आपके टुवर्ड्स ऐसा नहीं बोलूंगी कि प्यार नहीं रहेगा, बट वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल ज्यादा रहेगा अपने काम को लेके. he will be much more practical in his life rather than emotional. He will be very much practical. वो थोड़ा दिमाग से सोचेगा चीजें, दिल से सोचे, बट उसके अंदर इमोशंस होंगे. ही विल डेफिनेटली हैव दैट इमोशनल फीलिंग टुवर्ड्स यू. ही विल लव यू, एंड वो उसकी वो थिंकिंग रहेगी कि वो आपको हर चीज वो प्रोवाइड करे. ठीक है, लाइक आपको किसी चीज की कभी कोई कमी ना महसूस हो, वो आपको सारी चीजें दे आपकी लाइफ में. आपके बोलने से पहले वो आपकी लाइफ में सारी चीजें दे. लेट्स सी, टेक आउट मोर कार्ड्स कि आपका फ्यूचर स्पाउस कैसे होने वाला है. लेट्स सी.
स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल, फिर फाइनेंस, अपने फाइनेंस को लेके बहुत पर्टिकुलर होने वाला है, अपने काम को लेके बहुत ज्यादा पर्टिकुलर होने वाला है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। ओके, सो आई सी कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअल भी रहेगा, आपका जो पार्टनर होगा वो स्पिरिचुअल भी रहने वाला है, वो अपने काम को लेके फोकस्ड होगा, वो स्पिरिचुअल होगा, बट फाइनेंस को लेके उसका दिमाग ना फाइनेंस को लेके बहुत ज्यादा चलेगा, बहुत करियर ओरिएंटेड रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत लोग ऐसे हो जो यहाँ पे ऐसा पार्टनर मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, तो आपकी कहीं ना कहीं अपने जैसे आपको पार्टनर चाहिए, आपको आपका जैसे फ्यूचर हस्बैंड चाहिए, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल वैसे होने वाला है। आपकी जो विश है अपने पार्टनर को लेके कहीं ना कहीं वो पूरी होगी, जैसा आप चाहते हो वैसा आपको पार्टनर मिलेगा, आपका फ्यूचर स्पाउस वैसा रहने वाला है। ठीक है, केयरिंग होगा, लविंग होगा, नो डाउट, बट थोड़ा अपने दिमाग से वो ज्यादा सोचेगा रादर देन दिल से। एंड लेट्स टेक आउट कार्ड्स, मोर कार्ड्स फॉर क्लैरिटी। ये जो व्यूअर्स है उनका फ्यूचर स्पाउस कैसा रहने वाला है ओवरऑल। चेंज, जर्नी, ओके, एक्सपेक्टेशन। आपकी ना आपके पार्टनर को लेके थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं इमोशनली आई वुड से ज्यादा रहेंगी, क्योंकि वो आपकी इमोशनल एक्सपेक्टेशंस पूरी ना कर पाए, वो आपको इमोशनली उतना सेटिस्फाई ना कर पाए जो आपका फ्यूचर स्पाउस रहेगा। कहीं ना कहीं वो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ट्रैवल भी करने वाला रहेगा, मतलब उसका हो सकता है काम के रिगार्डिंग या कुछ। मुझे बहुत लोग यहाँ पे बिजनेस फ्यूचर स्पाउस उनके बिजनेसमैन दिख रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं उनका कोई बिजनेस होगा या बहुत ही अपर हायर पोस्ट पे होंगे, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ट्रैवल करेंगे काम के रिगार्डिंग, और हो सकता है आपका थोड़ा वो उसके रिगार्डिंग आपके इमोशंस के रिगार्डिंग आपके एक्सपेक्टेशंस पूरे ना कर पाए। वो जो टाइम आपको चाहिए अपने फ्यूचर स्पाउस से, हो सकता है वो टाइम आपको ना दे पाए। और मुझे कहीं ना कहीं बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है अभी करेंटली कि उनको कहीं ना कहीं या तो वो मैरिज के लिए कोई ढूंढ रहे हैं और उनको मैरिज के लिए कोई पार्टनर नहीं मिल रहा है। मतलब बहुत लोग ऐसे जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं फ्यूचर स्पाउस को लेके, वो अपने पार्टनर की सर्च में है, बट उनको वो पार्टनर वैसा मिल ही नहीं रहा है जैसे वो चाहते हैं। तो लेट मी गिव यू अ गुड न्यूज। तो जो ये पाइल 1 देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक पार्टनर, जैसे मैंने आपको बताया, वो कहीं ना कहीं ऐसा पार्टनर विद इन 1 और 2 मंथ्स के अंदर अंदर वो आपकी लाइफ में आने के चांसेस हैं, वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने के चांसेस हैं वैसा पार्टनर। तो कहीं ना कहीं मुझे वो चीज भी दिख रही है। बाकी आपके फ्यूचर स्पाउस का रहे तो वो थोड़ा सा अपने काम को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, थोड़ा सा अपनी क्या बोलते हैं फाइनेंसेस को थोड़ा ज्यादा, क्योंकि वो आपके लिए ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। वो आपको खुश रखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपको किसी चीज की कमी ना हो, कभी भी आपको किसी चीज की टेंशन ना हो। फाइनेंस को लेके आपका ऐसा नहीं रहे कि ये पूरा नहीं हुआ, वो पूरा नहीं हुआ। आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस, सारी डिमांड्स, सब कुछ आपको वो पूरा करना चाहते हैं, जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, जो आपके फ्यूचर स्पाउस रहने वाले हैं। नेचर वाइज वो थोड़े से इमोशंस अपने कम दिखाएंगे, नेचर वाइज वो इमोशन थोड़े से हो सकते हैं वो इमोशंस ना भी दिखाएं, बट वो आपकी केयर डेफिनेटली करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो इमोशनलेस होंगे, ऐसा नहीं है कि मतलब वो बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे, बट कहीं ना कहीं वो अपने इमोशंस थोड़ा अपना कंट्रोल में रखेंगे और वो अपने इमोशंस नहीं दिखाएंगे आपको, मतलब ना ही दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर उन्हें बहुत स्ट्रेस या तकलीफ भी हो रही है किसी चीज को लेके, तो वो आपको ना दिखाना, अपने इमोशंस छुपाना वो प्रेफर करेंगे रादर देन शोइंग देयर इमोशंस। और जो आपके फ्यूचर स्पाउस रहने वाला है ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आपका इनके साथ कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप या कुछ तो पास्ट लाइफ से इनका आपका कनेक्शन है। तो आपकी जो इनके साथ जर्नी है वो पास्ट लाइफ में भी कहीं ना कहीं रही है। तो आप दोनों के कुछ
कार्मिक इश्यूज भी हैं जो मैरिज के बाद बैलेंस होंगे। मैरिज लाइफ वैसे बहुत अच्छी जाने वाली है, ऐसी मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती, बट स्टिल कहीं ना कहीं कुछ कर्मा इश्यूज आप दोनों के पेंडिंग है जो मैरिज के बाद वो आपके रिलेशनशिप में इफेक्ट हो सकते हैं। बट कहीं ना कहीं आप दोनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग रहेगा, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी। बट कहीं ना कहीं वही है कि टाइम का इशू रहेगा, वो आपको ज्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे, वो अपने करियर को प्रायोरिटाइज करेंगे, वो अपने वर्क को प्रायोरिटाइज करेंगे, वो आपको इतना मतलब आप उनके लिए प्रायोरिटी हो, बट उनका काम उनके लिए पहले उनकी प्रायोरिटी है। तो अपने काम को ज्यादा, अपने आप को ग्रो कैसे करना है, अपने आप को एक्सपैंड कैसे करना है, अपने आप को कैसे एक लेवल पे लेके जाना है, कहीं ना कहीं वो मेरे को ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर की थिंकिंग वहां ज्यादा जाने वाली है, क्योंकि पेंटिकल्स पेंटिकल्स के कार्ड बहुत ज्यादा आ रहे हैं। बट वो आपको ऐसा मदरली उनको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर वो मदरली इंस्टिंक्ट है, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं यहाँ पे जो बहुत ज्यादा केयरिंग है, गिविंग उसमें ज्यादा देखते हैं लोग, उनका बहुत फायदा भी उठा लेते हैं उस चक्कर में। बट कहीं ना कहीं वो बहुत केयर करते हैं लोगों की, वो लोगों को अपने से ज्यादा उनके बारे में सोचते। तो मुझे ऐसे बहुत लोग दिख रहे हैं यहाँ पे जो मेरे फाइल नंबर 1 दिख रहे हैं। और फ्यूचर स्पाउस की अगर मैं देखूं तो जोडियक साइन मुझे उनका लगता है या तो वो एरीज हो सकते हैं, या वो सैजिटेरियस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, और स्कॉर्पियो हो सकते हैं, और कैप्रिकॉन हो सकते हैं, एंड पाइसिस। मुझे ये राशियां लग रही हैं जो दिख रहे हैं, उनके फ्यूचर स्पाउस की ये राशियां हो सकती हैं। एंड मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस का जो नेचर रहेगा ना, वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप के होंगे, हो सकता है बहुत ज्यादा लोगों से बिजनेस के तौर पे तो सोशलाइज करेंगे वर्क के, बट पर्सनल लाइफ में इतना शायद लोगों से सोशलाइज ना करे। वो थोड़ा इंट्रोवर्ट रह सकते हैं, अपने में रह सकते हैं, वो ज्यादा हो सकता है उनको सोशलाइज करना बहुत ज्यादा पसंद ना हो, आपका जो फ्यूचर स्पाउस हो। और लेट मी पुल आउट मोर कार्ड्स और क्लैरिटी के लिए कि आपका फ्यूचर स्पाउस कैसा होने वाला है। मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं आपका फ्यूचर स्पाउस कैसा रहने वाला है, स्पाउस कैसा रहने वाला है, इसके होने वाला है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ देन अगेन पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत आ रही है। लाइक जो भी पर्सन है, आपका फ्यूचर स्पाउस है, बहुत मनी ओरिएंटेड होने वाला है। मतलब बस मैं इतने पैसे कमा लूं, उतने पैसे कमा लूं, बस मैं पैसे ही कमाता रहूं लाइफ में, ऐसा टाइप की एनर्जी आपके फ्यूचर स्पाउस की दिख रही है। ठीक है, थोड़े से फ्लर्टी फ्लर्टी टाइप भी हो सकते हैं, मतलब ऐसे फ्लर्ट फ्लर्ट कर लेंगे आपसे, थोड़ा फ्लर्टी नेचर हो सकता है, बट आपके लिए लाइक अगर आपका क्वेश्चन है कि क्या मेरे फ्यूचर स्पाउस जो होगा मेरा होने वाला, मतलब ऑब्वियसली फ्यूचर स्पाउस जो होगा वो कहीं ना कहीं लॉयल रहेगा मेरे को लेके, द आंसर इज यस। वो डेफिनेटली आपको लेके लॉयल रहने वाले हैं वो, और कहीं भी मेरे को नहीं लगता कि उनका करियर पर से भी ध्यान हटेगा कि वो कहीं और अपने रिलेशनशिप पे लगाए। तो मुझे लगता है वो 100% आप पे क्या बोलते हैं लॉयल रहने वाले हैं। आप सिर्फ आप ही उनके लिए रहोगे, बाकी और मेरे को लगता भी नहीं वो किसी के टुवर्ड्स देखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड है, तो उनके लिए पहले करियर फर्स्ट है। तो वो अपनी एनर्जी सारी अपने करियर पे ही लगाएंगे, वो कहीं और अपनी एनर्जी लगाने ही नहीं वाले। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आपके फ्यूचर स्पाउस को लेकर। और जो भी जिसने भी पाइल 1 लिया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है उनकी मैरिज जो है विद इन दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर अप्रैल तक होने के चांसेस हैं। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि उनको बहुत जल्दी हो सकता है फ्यूचर स्पाउस बहुत जल्दी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करे, और उनके मैरिज होने के भी चांसेस हैं कहीं ना कहीं इस ईयर के एंड में या अगले साल अप्रैल में। तो मुझे मैरिज के भी चांसेस लग रहे हैं आप लोगों के। और
और मेरे को मेनली जो बहुत ज्यादा फाइनेंस के नोट चाहिए तो बहुत ज्यादा अबंडेंट रहेंगे आपके जो फ्यूचर स्पाउस होगा, बहुत ज्यादा मतलब पैसे वाला हो, बहुत ही ज्यादा। एंड कहीं ना कहीं आपको चाहिए भी था कि आपका जो फ्यूचर स्पाउस है वो बहुत ज्यादा पैसे वाला हो, ठीक है, मतलब बहुत पैसा कमाता हो। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये लॉयल भी रहेगा, कहीं ना कहीं ही विल बी लॉयल। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ये मत सोचो कि बहुत पैसे वाला है तो कहीं ना कहीं चीट कर सकता है। वो मेरे को चीटिंग की एनर्जी नहीं दिखती है, कहीं चीट नहीं करेगा। मुझे लगता है वो आपको लेके लॉयल रहेगा, कहीं ना कहीं जो भी पैसा है वो आपके लिए ही कमा रहा है, अपनी फैमिली के लिए कमा रहा है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो कहीं और किसी और पे अपनी एनर्जी लगाएगा, या कहीं और हो सकता है उसकी एनर्जी डाइवर्ट होने के चांसेस है, तो मुझे वो चीज नहीं दिख रही है। एंड नेचर वाइज देखा जाए तो हाँ, थोड़े से स्टबन हो सकते हैं, थोड़े से जिद्दी हो सकते हैं चीजों को लेके, अपनी चला सकते हैं, जो मैंने बोला डोमिनेटिंग नेचर के हो सकते हैं, थोड़े अपने में रहने वाले हो सकते हैं कि ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट ना करें, ठीक है, ज्यादा लोगों के साथ उनके बातचीत ना हो, सिर्फ काम को लेके हो। बट वैसे पार्टी हॉलिक टाइप इतने मेरे को नहीं लगता है, पता नहीं एनर्जी नहीं आ रही मेरे को पार्टी हॉलिक टाइप की इतनी। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा पार्टी हॉलिक टाइप होंगे। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़े से इंट्रोवर्ट के नहीं, मतलब जिसे कहते हैं ना सिलेक्टिवली एक्सट्रोवर्ट और वैसे इंट्रोवर्ट, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंट्रोवर्ट नेचर के ही होने वाले हैं ये। सो इट्स अ गुड थिंग ना कि आपसे बात कर रहे ज्यादा और किसी से बात नहीं कर रहे क्योंकि इंट्रोवर्ट नेचर के हैं। Okay, so this is the reading for pile 1. Stay tuned for pile 2 reading. Hi guys, this is the reading for pile 2. Let's see कि आपका future spouse कैसे होने वाला है. Let's pull out the cards for your future spouse कि आपका future spouse कैसा होगा, उसका नेचर, उसकी पर्सनालिटी, will be loving, caring. Let's see all about your future spouse. Eight of Pentacles, Three of Pentacles, Nine of Wands, Eight of Swords, King of Swords. ओके, तो जो ये आपका फ्यूचर स्पाउस है फॉर पाइल 2, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हार्ड वर्किंग रह सकता है, मतलब मेहनती इंसान मुझे दिख रहा है आपका जो फ्यूचर स्पाउस है। कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़ा सा हो सकता है कि ओवर प्रैक्टिकल चीजों को लेके, या फिर ओवर पोजेसिव चीजों को लेके, आपको लेके, क्योंकि बंदा बहुत ओवर थिंकिंग है, मतलब मैं बोलूंगी बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है ये पर्सन जो आपका फ्यूचर स्पाउस है। लाइक बहुत ज्यादा ओवर थिंक करेगा, हर चीज को लेके सोचेगा इतना। मुझे बहुत ज्यादा लीब्रा एनर्जी आ रही है इस पाइल से, सोर्ड्स एनर्जी, लीब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस वाली वाइब भी मुझे इस ओवरऑल एनर्जी आ रही है जो आपका फ्यूचर स्पाउस होने वाला है कहीं ना कहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो थोड़ा ना चीजों को पकड़ के रहने वाला बंदा है कि हाँ, अगर उसको कोई मतलब बहुत इजीली हर्ट भी हो जाएगा, जैसे अगर आपने उसको कुछ बोल दिया और उसको चीज बुरी लग गई तो कहीं ना कहीं वो हर्ट हो जाएगा आपकी बात से। वो बताएगा नहीं, बट वो थोड़ा हो सकता है आपसे कोल्ड बिहेव करे, या फिर थोड़ा सा इग्नोर करे आपको। अगर वो आपसे हर्ट हो तो ज्यादा बातचीत ना करे, मतलब उसका कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं रहने वाला है। इसको थोड़े कम्युनिकेशन इशू रह सकते हैं, थोड़े ईगो इश्यूज रह सकते हैं इस पर्सन को, मुझे ऐसा लग रहा है। बट ये बंदा बहुत मेहनती होगा, मतलब कहीं ना कहीं मेहनत बहुत करेगा ये, बट ये बहुत ज्यादा जल्दी इजीली स्ट्रेस ले लेता है, बहुत ज्यादा इजीली चीजों को पकड़ के बैठता है, ये बहुत ज्यादा इजीली चीजों में स्टक हो जाते हैं, क्योंकि ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है इस पर्सन की बहुत ज्यादा। जो आप फ्यूचर स्पाउस है, जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं कि फ्यूचर स्पाउस कैसा होने वाला है, जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं कैसा होने वाला है। वेल्दी मैन, पाथवे, मैसेज। बट
इस पर्सन का ना पास्ट इतना अच्छा नहीं रहा है, मतलब इसका जो पास्ट रहा है, इसका किसी ने, मुझे ऐसा लगता है किसी ने इसका दिल तोड़ा है, हर्ट किया, कुछ रहा है उसके पास्ट में ऐसा कि थोड़ा सा इस वजह से अपनी लाइफ को लेके डरता है, मतलब अटैचमेंट से डरता है, थोड़ा कि अगर वो अटैच, अगर आपसे शादी भी हो गई तो बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गया और आप उसको छोड़ के तो नहीं चले जाओगे टाइप्स, ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि बहुत ज्यादा थोड़ा सा है वो अपने आप को लेके ओवर थिंकिंग करता रहता है। तो वेल्दी मैन, दिस gonna be a person have a lot of money, बहुत पैसा होने वाला है इस पर्सन के पास, बहुत पैसा होने वाला है इस पर्सन के पास। कहीं ना कहीं आपको हो सकता है अलग अलग जगह की ट्रिप्स कराए, या आप फ्रीक्वेंटली इसके साथ कहीं वेकेशंस पे जा रहे हो, या आप इसके साथ या आपको अब्रॉड भी लेके जा सकते हैं, जो चांसेस बन रहे हैं, ही कैन टेक यू टू अब्रॉड। ठीक है, तो आप इसके साथ बाहर घूमने जा सकते हो फ्रीक्वेंटली, क्योंकि मुझे फ्रीक्वेंट ट्रैवल दिख रहा है इस पर्सन के साथ। बट ऐसा नहीं है, ये पर्सन बहुत रोमांटिक भी रहेगा कहीं ना कहीं, इज गोना बी अ वेरी रोमांटिक पर्सन, मतलब जिसे कहते हैं ना, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है रोमांस की, या ऐसा चाहिए मुझे जो मेरा पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनल और रोमांटिक हो, ये इमोशनल और रोमांटिक दोनों रहने वाला है। बट इसके साथ ये दिक्कत है कि अगर इसको कोई चीज लग जाए तो इस चीज को पकड़ के बैठ जाता है, मतलब इजीली, इतना इजीली उस चीज को लेट गो नहीं करते है। अगर उसने एक चीज पकड़ ली तो वो उसको पकड़ के बैठा रहेगा उस चीज को। तो हो सकता है उसको इस वजह से कम्युनिकेट करने में आपसे थोड़ा दिक्कत आए, कि अपनी चीज को, अपनी फीलिंग्स को वो इतना इजीली और इतना ओपनली कम्युनिकेट ना कर पाए। बट ये जो पर्सन है, इट्स गोना बी अ फैमिली मैन, मतलब he will be loving and caring towards you for sure, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना इस पर्सन के अंदर ईगो भी मेरे को लग रहा है, ईगोस्टिक रह सकता है पर्सन। ठीक है, अगर उसकी कोई बात ईगो पे लग गई तो ऐसे वो बात नहीं करेगा है, या जिसे कहते हैं ना, एक होता है हार्ट टू हार्ट टॉक्स, तो वैसे टाइप का बंदा है, ये अपने मूड के हिसाब से चलता है अगर मैं बोलूँ तो। The person is gonna be a very, 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 very moody person. And let's take out more cards. कि how is gonna be your future spouse? देखते हैं आपका future spouse कैसा होने वाला है। Let's see. Wisdom. Choose wisely. वही ना, confusion वाले कार्ड मुझे बहुत आ रहे हैं इस रीडिंग में, ये मतलब बहुत कंफ्यूज रह सकता है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, यस। ये बंदा बहुत स्ट्रेस लेगा, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करेगा, और इतना कि हो सकता है इसका उस वजह से भी थोड़ा मूड खराब रह सकता है, और बट ये बताएगा नहीं, बट ये स्टिल ये थोड़ा सा उस सिचुएशन में रहेगा कि यार, मतलब सोच सोच के, ये नहीं कि कम्युनिकेट करते, बट सोच सोच के खुद परेशान होता रहेगा कहीं ना कहीं। तो इसको डिसीजन लेने में भी प्रॉब्लम आएगा इसको, क्योंकि भाई मैंने कहा थोड़ा लीव एनर्जी भी आ रही है मुझे, तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है डिसीजन लेने में इस पर्सन को हो सकता है दिक्कत हो, या एक प्रॉपर डिसीजन ना ले पाए, या चीजों को बैलेंस करके चलने की कोशिश करे, बट चीजें बैलेंस वे में ना चल पाए, या थोड़ा सा उसको लगे कि यार, मतलब मैं चीजों को वैसे ले जाना चाहता था बट चीजें वैसे नहीं गई, दूसरे डायरेक्शन में चली गई, तो थोड़ा हो सकता है उस वजह से भी उसको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट या मेंटल परेशानी रह सकती है। बट ही इज गोना बी अ वेरी 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 नॉलेजेबल पर्सन, इस पर्सन के पास बहुत नॉलेज रहने वाला है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना ब्यूटी विद ब्रेन, तो कहीं ना कहीं पर्सन एक ब्यूटी विद ब्रेन रहेगा, कहीं ना कहीं ब्रेन तो इसके पास बहुत है, बट दिस पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी हैंडसम, लाइक बहुत ही ज्यादा हैंडसम रहने वाला है। जैसे इसके फीचर्स फेस के बहुत ज्यादा शार्प रह सकते हैं, इसकी जो मुझे हाइट है इंट्यूटिवली आ रही है 5'10", हाँ 5'10" या 5'11" के बीच में ऐसे रह सकती है हाइट, जिसने भी पायल 2 चूज किया है।
5'10", 5'11" हाइट रह सकती है। कॉम्प्लेक्शन मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत फेयर नहीं रहेगा, बट स्टिल इट्स गोइंग टू बी फेयर। फेयर कॉम्प्लेक्शन मुझे दिख रहा है। एंड और मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन ना थोड़े से यू नो इसकी जो पर्सनालिटी रहेगी ना, पर्सनालिटी इज गोइंग टू बी वेरी चार्मिंग। मतलब इसका अगर ये ओवरथिंक करता भी होगा ना, तो सामने वाले को दिखेगा नहीं कि भाई बंदा इतना सोच रहा है। उसकी पर्सनालिटी इतनी चार्मिंग रहेगी कि पीपल विल नेचुरली गेट अट्रैक्टेड टू हिम। मतलब कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली वो करेगा भी नहीं तो भी लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है उनसे, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी इतनी चार्मिंग रहने वाली है। कहीं ना कहीं आपको हो सकता है थोड़ी जेलेसी भी हो, क्योंकि लड़कियां हो सकते हैं इनसे बहुत अट्रैक्ट हो, क्योंकि इनका थोड़ा है वैसा ऑरा, वैसा रहेगा, ऑरा बहुत पॉजिटिव रहेगा इनका। बट इन मेनली मेरे को इनमें से सिर्फ एक ही दिक्कत आ रही है कि बहुत स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत लेंगे। एंड अगर ये ओवर थिंकिंग इनकी थोड़ी, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस अगर अपना ओवर थिंकिंग पे थोड़ा कंट्रोल कर ले तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर उस वजह से ना रिलेशनशिप में दिक्कत आ सकती है, आपकी कम्युनिकेशन इश्यूज आ सकते हैं। आप अगर ओपनली दोनों कम्युनिकेट ना करो तो उसमें भी थोड़े आपके रिलेशनशिप में आ सकते हैं इश्यूज। बाकी मुझे ओवरऑल पर्सन जो मैं कहूँ, इट्स गोना बी अ वेरी गुड पर्सन, गोना बी वेरी वेल्दी मैन, वेरी नॉलेजेबल मैन। एंड कहीं ना कहीं बातचीत सबसे अच्छे से करेगा, कहीं ना कहीं मेहनती है, कहीं ना कहीं आपको खुश रखेगा। बट जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, जो जो भी प्रॉब्लम्स उनका आप ध्यान रखना कि थोड़े ईगो इश्यूज रहेंगे, वो सब चीजें वो, बट इतना कोई मेजर इशू नहीं रहेगा, तो आप टेंशन मत लीजिए कि बनेगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ईगो की वजह से। ये पर्सन बहुत चार्मिंग रहने वाला है, पर्सन बहुत ही अच्छा रहने वाला है जो आपका फ्यूचर स्पाउस है। सो दिस इज इट फॉर pile 2 reading. Let's go for pile 3. Hello pile 3, so let's go ahead with your reading. जिसने भी 9 of swords ये वाला पाइल चूज किया है, लेट्स गो फॉर योर रीडिंग कि आपका फ्यूचर स्पाउस कैसा होने वाला है। लेट्स सी कि आपका फ्यूचर स्पाउस कैसा रहने वाला है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द मून, द हर्मिट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्ट्रेस। ओके, बिफोर गोइंग अहेड विद कि आपका फ्यूचर स्पाउस कैसा रहने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है ये पाइल थ्री जिसने चूज किया है, ये लोग बहुत ज्यादा अभी किसी चीज को लेके तो बहुत दे आर ओवर थिंकिंग अलॉट। मतलब किसी बहुत उदास है, किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रखे हैं अभी किसी सिचुएशन में या कुछ। मुझे लग रहा है जिसने भी ये पाइल थ्री चूज किया है, तो आप लोगों को मैं इतना बता दूं कि आप लोगों की जो भी अभी सिचुएशन चल रहा है वो आपका विद इन 1 या 2 मंथ्स के अंदर अंदर आपका वो पीरियड एंड हो जाएगा। तो जो अभी आप नेगेटिव जोन में चल रहे हो, आपकी जो भी नेगेटिविटी है और जो भी आपका कंफ्यूजन है, सारा विद इन 1 to 2 मंथ्स के अंदर अंदर सारा क्लियर होने वाला है। सो आप टेंशन मत लीजिए इस चीज का। एंड अगर मैं रीडिंग पे आऊं कि आपका फ्यूचर स्पाउस कैसा होने वाला है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंस को लेके तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती, फाइनेंशियली वो अच्छा रहेगा। बट मुझे मेन दिक्कत यहाँ लगती है कि आप दोनों के बीच में ना थोड़े कॉन्फ्लिक्ट रह सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, आई वुड से कि थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस बहुत रह सकता है। थर्ड पार्टी से मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई और गर्लफ्रेंड या कुछ ऐसा, बट जैसे और लोग घर में आपके जो मदर इन लॉ, फादर इन लॉ की
तरफ से इंटरफेरेंसेस जो भी होते हैं घर में, उस वजह से आप दोनों के बीच में ना टेंशन बहुत रह सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का जो कम्युनिकेशन है ना वो थोड़ा सा वीक रहेगा। आप इतना इजीली एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे मैरिज में। बट कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नेगेटिव रहेगा, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी, बट हो सकता है आप अपनी स्टार्टिंग ऑफ द मैरिड लाइफ में ना थोड़े हो सकता है परेशान रहो, हो सकता है आप अपनी फीलिंग्स और इमोशंस थोड़े से आपके डिस्टर्ब रहे बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस एंड थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। बट ये बहुत लॉन्ग टर्म तक नहीं जाने वाला है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये मुझे ऐसा लग रहा है आपकी मैनिफेस्टेशन पावर अगर आप इम्प्रूव करें ना तो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो सकती है। आप अपनी लाइफ में थ्रू मैनिफेस्टेशन बहुत चीजें चेंज कर सकते हो। तो आप बस अच्छा मैनिफेस्ट करो अपनी लाइफ में कि कुछ नेगेटिव ना हो या कुछ नेगेटिव लोग इंटरफेयर ना करें आपकी लाइफ में, ये चीज आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। बाकी मैं और कार्ड्स निकालती हूँ कि आपका फ्यूचर स्पाउस कैसा रहने वाला है। लेट्स सी कि आपका फ्यूचर स्पाउस कैसा रहने वाला है। जो भी पाइल 3 मेरे देख रहे हैं, आपका फ्यूचर स्पाउस कैसा रहने वाला है। देखा मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी, तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली भी और फाइनेंस वाइज भी अच्छा रहेगा। बट वही कंफ्लिक्ट एंड डिफीट आ गया, आप दोनों के बीच में थोड़े कम्युनिकेशन इश्यूज रह सकते हैं, जो कि मेरे को लग रहा है आपके पार्टनर हो सकता है बहुत एक्सप्रेसिव ना हो, अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए, इस वजह से भी आप दोनों के बीच में थोड़ा सा कम्युनिकेशन इशू रह सकता है, थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स रह सकते हैं आप दोनों के बीच में। एंड कहीं ना कहीं बहुत लोग यहाँ ऐसे हैं जिनको अपने बेस चक्रा के ऊपर काम करना चाहिए, उनका बेस चक्रा ब्लॉक्ड है, तो आप अपने बेस चक्रा के ऊपर काम कीजिए। यूनिवर्स, हाँ, बाकी सारी चीजें आप ना बस यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए कि यूनिवर्स है, यूनिवर्स देख लेगा। आप बस अपने बेस चक्र पे काम कीजिए, कहीं ना कहीं अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी अपनी सेल्फ ग्रोथ पे फोकस कीजिए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना अपने लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान रहते हो चीजों को लेके, आप कहीं ना कोई प्रॉब्लम्स में, कोई ना कोई इश्यूज में ना घिरे रहते हो, और वही चीजें वापस से आपकी लाइफ में और ज्यादा अट्रैक्ट होती है, प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज और सब, क्योंकि आप ना लेट गो नहीं कर पाते चीजें, आप चीजों को पकड़ के रखते हो, आप उसे छोड़ नहीं पाते कि यूनिवर्स देख लेगा या मैं इस पे छोड़ देती हूँ भगवान देख लेंगे, नहीं, आप वो नहीं कर पाते। आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ओवर बर्डन और ओवर स्ट्रेस ले लेते हो चीजों को लेकर, आप अपने आप को लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर भी हो कहीं ना कहीं कि शायद आप अच्छा डिजर्व ही नहीं करते हो। ऐसे भी आपको कभी कभी थॉट्स आते होंगे, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। आपके दिमाग में जो चीजें हैं वो आप अपने इल्यूजनरी आपकी क्रिएट की गई है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपने ओवर थिंक कर करके क्रिएट की है, ये सच नहीं है। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा डिजर्व करते हो, क्योंकि अभी एनर्जी जो मुझे फ्यूचर स्पाउस से ज्यादा आप लोगों की आ रही है कि आप लोग अभी जिस सिचुएशन में हो या आप लोग जिस चीज से सफर कर रहे हो, कहीं ना कहीं मैं चाहती हूँ कि बहुत जल्दी हील हो जाए, और मैं चाहती हूँ कि आप अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो यूनिवर्स को छोड़ दो, वो अपने आप सही हो जाएंगी। तो आप ज्यादा उस चीज को लेके इंडल्ज करोगे या ओवर थिंक करोगे तो प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ेंगी, तो आप यूनिवर्स पे सारी चीजें छोड़ दो। लेट्स सी कि आपका जो फ्यूचर स्पाउस है वो कैसे रहने वाला है। अगेन हाउस द लवर्स, सी आप दोनों बहुत अच्छा आपका कनेक्शन रहने वाला है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, बहुत ही अच्छा आपका एक
स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड आपका, क्योंकि कहीं ना कहीं लवर्स का कार्ड है, सब लकी कार्ड है, तो किसी की रीडिंग में आ गए तो इट रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन। तो कहीं ना कहीं आपका बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन रहने वाला है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। बट वही है ना कि प्रॉब्लम्स आप खुद, आपका जो दिमाग है वही आपकी लाइफ में आज ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, और कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में भी कर सकता है। तो बस आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने ग्रोथ पे काम करना है, आपको सेल्फ लव ज्यादा करना है, आपको किसी चीज से इनसिक्योर नहीं होना, आपको बस आपकी जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है उसको लेट गो कर दो और यूनिवर्स में छोड़ दो, अपने आप ठीक हो जाएगा। और रही बात फ्यूचर स्पाउस की, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है यार इज गोना बी गुड एट फाइनेंसेस, ठीक है, बट कहीं ना कहीं हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग डाउट की वजह से, क्योंकि वो भी थोड़ा सा है इमोशनल, आपका पर्सन है वो भी इमोशनल रहेगा आपको लेके डेफिनेटली, तो वो भी चीजें ओवर थिंक करेगा, वो भी आपको लेके वो सोचेगा चीजें, वो भी हो सकता है अपने इल्यूजन्स क्रिएट करते हो और आप भी अपने इल्यूजन्स, तो आप दोनों क्रिएट कर दोगे। तो वही है ना कि जो कम्युनिकेशन है आप दोनों का बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, आप दोनों का कम्युनिकेशन वीक है, आप दोनों का कम्युनिकेशन जो है बहुत वीक रहने वाला है, ठीक है। तो आपको उस कम्युनिकेशन पे फोकस करना है, आपको उस चीज पे फोकस करना है अपने कि आप मैं अपना कम्युनिकेशन कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकूं, या मेनली तो मुझे लगता है आपके पार्टनर को ही अपने कम्युनिकेशन के काम करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आपका कम्युनिकेशन सही हो बट आपके पार्टनर भी थोड़े लेस कम्युनिकेटिव हो, और वो आपसे चीजें कम्युनिकेट ना कर पाए, अगर कोई इंटरफेयर भी करता है एंड वो उनकी बातों में आ जाए। बाकी जो आपके पार्टनर की एनर्जी है, मुझे ज्यादातर मुझे वाटर साइन बहुत लग रहे हैं, आपके जो पार्टनर हो सकते हैं वो वाटर साइन रह सकते हैं, ठीक है। एंड मुझे लगता है आपके पार्टनर होंगे ना वो थोड़े से बल्कि हो सकते हैं, ठीक है, उनके फीचर्स अच्छे रहेंगे बट उनका ऑरा थोड़ा सा ओवर थिंकिंग की वजह से थोड़ा नेगेटिव रह सकता है। बाकी मुझे ऐसे लगता है जो आपके पार्टनर होंगे वो कहीं ना कहीं उनका उनका फेस स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा, लाइक he's gonna be handsome, I won't say he will be ugly and no one is ugly apparently, so कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर हस्बैंड जो होंगे वो हैंडसम ही रहेंगे, उनके फेस फीचर्स अच्छे होंगे काफी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपको वो कहीं ना कहीं आपको इक्वली टाइम देने की कोशिश करेंगे, वो रिलेशनशिप में एफर्ट्स भी डालेंगे, ठीक है, बट हो सकता है उनकी लाइफ में चीजें थोड़ी सी इतनी अच्छी ना हो, कहीं ना कहीं वो हो सकता है किसी प्रॉब्लम में जा रहे हो, या हो सकता है वो किसी प्रॉब्लम में हो बट स्टिल वो मैनेज करेंगे आपको खुश रखने का, ठीक है, ही विल बी इमोशनली कनेक्टेड टुवर्ड्स यू, ही विल श्योरली केयर टुवर्ड्स यू, बट कहीं ना कहीं मेन जो मुद्दा मुझे लग रहा है इस पे, मुझे लग रहा है आप दोनों को बस कम्युनिकेशन पे मेनली ध्यान देना होगा, क्योंकि उसी की वजह से ही आधे से ज्यादा चीजें खराब हो सकती हैं। तो आप दोनों अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान देना, जो भी आपका फ्यूचर स्पाउस रहेगा, अगर वो नहीं कम्युनिकेट करे तो आप उनसे बार बार ट्राई करना कि चलो मैं कम्युनिकेट कर देती हूँ, तो चलो मैं ही सॉल्व कर देती हूँ चीजें, तो आप वो चीज ट्राई करना, ठीक है। अगर वो ना कर पाए तो आप अपनी साइड से एक्स्ट्रा एफर्ट डाल लेना थोड़ा सा, मतलब दिल के बुरे नहीं होंगे, वो अच्छे ही हैं आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, फाइनेंस वाइज भी अच्छे हैं, नेचर वाइज भी अच्छे हैं, और पर्सनालिटी भी उनकी, मैंने आपको बताया थोड़ा ओवर थिंकिंग की वजह से हो सकता है थोड़ा और उनका डिस्टर्ब हो, उस वजह से तो आपको लगे कि बंदे के अंदर तो ईगो ही है, बट ऐसा नहीं होगा, कहीं ना कहीं वो थोड़े इमोशनल ज्यादा होंगे, तो इस वजह से ना अपने इमोशंस वो ज्यादातर शो नहीं, वही मैंने बोला ना कम्युनिकेशन का आ गया पूरा, तो मुझे मेनली जो लग रहा है पूरा, मुझे लग रहा है अगर उनको कम्युनिकेशन इशू आ सकता है तो अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए, अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए, एंड कहीं ना कहीं आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो डेफिनेटली डेफिनेटली आपके लव करते हैं एंड आपको चीट नहीं करेंगे, चीटिंग की मुझे कोई एनर्जी नहीं आ रही, तो डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आपको लग रहा है कि वो चीट करेंगे तो नहीं, वो चीट नहीं करेंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए, चीटिंग की तो बिल्कुल ही मत लीजिए, क्योंकि वो कहीं और कहीं नहीं जाने वाले आपको छोड़ के, तो आप बिल्कुल ही बेफिक्र रहना अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ,
बट जो मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन का, आप प्लीज उस पर जरूर ध्यान देना, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट है आप दोनों के रिलेशनशिप में, जो आपको मेंटेन करके रखनी है। अगर उनके साइड से नहीं हो पाया कोई बात नहीं, आप अपने साइड से मेंटेन करके रखो। ओके, सो दिस इज द रीडिंग फॉर पार्ट 3। और अगर आपको मेरा रीडिंग पसंद आया या आपसे रेजोनेट किया, एज इट वाज जनरल रीडिंग, ठीक है, कुछ कुछ से रेजोनेट किया होगा, कुछ कुछ से रेजोनेट नहीं किया होगा, बट अगर आपको मेरा रीडिंग रेजोनेट किया, देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट लव। लव कमेंट करो, एंड ये जो एनर्जीज हैं जो मैंने आपके लिए निकाली है, वो और ज्यादा अलाइंड हो जाएंगी आपसे, और वो और ज्यादा कनेक्ट हो जाएंगे। तो कमेंट लव जितना कर सकते हो कमेंट सेक्शन में लव कमेंट करो, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, लेट्स मीट सून।